Hello students, you all are welcome in grade 8 subject maths topic chapter number 14 factorization subtopic chapter number 14.1 continue. Question number 2. Last time we had done up to question number 1 where common factorization method is there. Now this time the same method is there, common factorization, but we have to make them partition. So factorize by partition method. In this, you have 1, 2, 3 and 4 terms, dear students. Out of them, make it 2 terms, mean group it. So these and this group, these and this. Now by this group, our first method, common factorization. In this, x into x, x into y, okay, 8 into x, 8 into y. Now which one is common in this group? X is common, so x plus y, and then from this group at is 8 is common, so x plus y. Dear students, you have to remember that when you have to make a group, you have to make group in a such a way that when you factorize, the bracket remaining term will be exactly same. You see here, in first group x plus y is there, in second group x plus y is there. It means that first factor is x plus y एंड अनदर फैक्टर आप कॉमनली लीजिए दोनों में से क्या रह गया यहां से x प्लस ए, सो x प्लस ए, सो x प्लस वाई x प्लस ए. दिस इज factorized by partition method. Exactly this way we have to count second one. You see, in this sum 4 terms are there. Make it group. कई बार क्या होता है, ये ग्रुप अभी बराबर करेक्ट दिया है, लेकिन देखो आगे हम गिनेंगे ना, इन दैट द ग्रुप विल बी जंबल अप, सो वी हैव टू मेक इट अरेंज. नाउ इट इज टोटली अरेंज. हियर you see these two and these two. In this first one also it is totally arranged. Okay, so now 3 5s are 15, x into y, 2 3s are 6, 5y minus 2 not factorize. So now from this 3 and x will be the common from this group first. So 3x. So what is remaining inside? 5y minus 2. Here plus will be the common. Whatever the sign over here, that will be the common sign. Plus 1 will be the common. So if plus is there, then no problem. Put it same sign. Plus plus minus minus same term. Right? So 5y minus 2, because nobody is common over here. So if nobody is common, nothing is common means 1 is common. So now this 5y minus 2, 5y minus 2 bracket same. So 5y minus 2 is one of the factor, it is taken out common. So remaining 3x plus 1. Okay. So I think you got the idea. Now in this 4 terms are there. It is totally arranged. So we have to take out the common a plus b. The here minus sign is there. When you, dear student, please remember, when minus sign is there, then inside the sign will be opposite, right? So this minus term become plus term, this minus term become plus term, or whatever plus term is there, it become minus, like that. सो माइनस में आपको अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, बराबर. तो ये भी a प्लस बी हो गया. तो a प्लस बी इज द कॉमन एंड x माइनस 5. अभी देखो ये इन दिस हियर अरेंजमेंट, सपोज आप अरेंज करते हो, लेकिन देखो यहां कुछ कॉमन नहीं आया. देखो तो क्या हो गया, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, बराबर. जानबूझ के मैंने किया है कि ताकि आपको पता चले कि यहां कैसे करने का, राइट. सो नॉट सेम, ब्रैकेट इज नॉट सेम, सो देन वी हैव टू अरेंज अगेन इन सच अ वे दैट ब्रैकेट टर्म मस्ट बी इक्वल. मैंने लिखा इधर. तो देखो हमने क्या क्या लिया अरेंजमेंट में. पहले यहां से 15p क्यू लिया, इसके साथ 9q लिया, और 15 के साथ 25p लिया. देखो 15pq के साथ 9q ले लिया, रीअरेंज कर दिया ये दोनों को, बराबर. ये दोनों और ये दोनों, करेक्ट. फिर फैक्टराइज किया जैसे हम मेथड करते वैसे. 5 3 15pq, 3 3 9q, 5 5 25, right. So 3q will be the common. So inside 5p plus 3, here 5 will be common, 5p plus 3. देखो
इक्वल आ गए ना, यहाँ इक्वल नहीं थे, तो आपको ये पार्ट नहीं करने का, अभी यहाँ से यहाँ तक का करने का नहीं, ये तो आपको दिखाने के लिए किया। यहाँ आपका सम यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। सो 5p plus 3 is one of the factor and inside 3q plus 5. Here 1 2 3 4 is there, so here factorize by partition method. So z minus x, यहाँ भी हमको अरेंज लास्ट दो टर्म अरेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस एक्स वाई जेड वाला यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। देखो नथिंग विल बी कॉमन मीन्स वन विल बी देयर, so z minus 1 and here xy z 7xy, so xy will be the common inside what, देखो यहाँ माइनस पहले आया, राइट, माइनस बार हुआ, तो ये माइनस का टर्म यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस का टर्म माइनस हो गया, वो याद रखो बराबर। तो xy तो क्या बाकी रहा, z प्लस z, एंड ये प्लस है तो ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर कॉमन है, प्लस है तो एज इट इज साइन रहेगा अंदर, लेकिन माइनस है तो साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सो 7 रह गया। देखो ब्रैकेट सेम आ गई, z minus 7 z minus 7, so z minus 7 you have to write down first common out, so what is inside remaining here, 1 minus xy. So like this way you can do exercise 14.2, same type of sum are there, question number 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, so this you do, if you have any problem then you can ask me, right, ये हो जाएंगे exactly, ये factorize by partition method है। Now move to exercise 14.2, factorize the following expression, question number 1, यहाँ ये फॉर्म क्या है, ax square plus bx plus c टाइप। यहाँ देखो बच्चों, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है ना आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर मालूम है, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, तो 1 4 9, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, 1 4 9 16 25, हाँ 36 64 84 64, then 7 7 are 49, 8 8 are 64, then 81, then 100, then 11 square means 121, these all are the perfect square। तो ऐसे नंबर्स ऐसे टर्म आएंगे, वेरिएबल होगा तो ए रेज टू स्क्वायर आएगा, या ए रेज टू 4 आएगा, बराबर ऐसे रहेगा वेरिएबल में। तो देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी उसका क्या हो जाएगा ए, और ये 16 वो भी परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या करने का, पहले कैसे काउंट करने का, ये देखो 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ए का, तो ब्रैकेट में लिखो ए होल स्क्वायर। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो ब्रैकेट में लिखो 4 होल स्क्वायर, राइट। सो मिडल टर्म ऑटोमेटिक आपका 8 आएगा, कैसे आएगा देखो, यहाँ पहले प्लस, ये प्लस बीच वाला साइन प्लस है तो प्लस रख दो, देन फर्स्ट ब्रैकेट एंड लास्ट ब्रैकेट, राइट। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये ए आएगा, यहाँ लास्ट ब्रैकेट में ये आपका 4 आएगा, 4 2 जा 8 ए आ गया प्लस 8 ए, हाँ, इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच टर्म, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए फर्स्ट टर्म प्लस बीच वाली जो साइन है वो रखो, प्लस बीच वाली साइन माइनस है तो माइनस रखो, सो ए प्लस ये 4 होल स्क्वायर, ये आंसर। देखो सेकंड, ये थर्ड सम है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप है, a और c दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 25m स्क्वायर किसका स्क्वायर, 5m होल स्क्वायर, ये 9 किसका स्क्वायर, 3 का, बराबर। तो ये पहले ये दोनों लिख दो, बीच वाला है देखो बीच में साइन प्लस है, प्लस लिख दिया, 2 तो आएगा ही, सब में 2 आएगा, आप 2 रख दो, यहाँ भी देखो 2 है तो यहाँ भी 2 है, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म put it over here 5m, last term put it over here 3, बराबर। then it is a perfect square of which term, first term plus last term whole square, बीच वाली जो साइन है प्लस, so 5m plus 3 whole square। नेक्स्ट देखो p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, यानी ये देखो ये क्या है, ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप है, a एंड c दोनों परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन बीच में साइन माइनस है, बराबर, बाकी सेम है। तो ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे आर ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर एंड हैविंग प्लस साइन, बीच वाली ही माइनस या प्लस साइन रहेगी, राइट। नाउ p स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर, सो p को यहाँ रख दो, 5 को, ये देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट। देन 2
टू तो रखना ही है, ये टर्म यहाँ आ जाएगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगा, पाई टू ज़ा 10p माइनस 10p आ गया, बस वो आ जाना चाहिए, इट मीन्स आपका सम हो गया। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, p माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर मेथड। Yes, 49y square plus 84yz plus 36z square. थ्री टर्म्स है बच्चों। फर्स्ट टर्म दैट इज 49y स्क्वायर एंड 36 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका, 49y स्क्वायर मीन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7y स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6z स्क्वायर, बराबर। चलो बीच में प्लस साइन प्लस रख दिया, 2 तो रखना ही है हमें, है ना। ये 7y इधर आ गया, 6z इधर लिख दो। देखो 84yz आता है कि नहीं, देखो 7 2 जा 14, 14 6 जा 84yz हो गया। इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7y प्लस 6z होल स्क्वायर, सिंपल। अभी ये बीच वाला माइनस है, देखो सेम मेथड 2x होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये और ये तो प्लस ही आएगा, बीच में प्लस या तो माइनस आएगा और ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, माइनस 8x, तो 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। ये देखो 6, यहाँ 121b स्क्वायर है, ये 16, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन वाला है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, 11b का, ये 4c होल स्क्वायर, बीच में माइनस 11 2 जा 22, 22 4 जा 88 bc हो गया। तो इट मीन्स द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11b minus 4c whole square. So here for practice I am giving this homework, this extra sum is where which is method based on perfect square, right? तो ये सब perfect square के homework, so you have to factorize by perfect square method, correct? ये देखो up to 11 सम मैंने दिए है, वो आपको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।